Carefully. I'm going to discuss this program. See, first of all, we'll check for this condition. Write a program text of sentence and which may be terminated by the dot, question mark or exclamation sign. Means उसका जो end होना चाहिए, जो हम sentence input लेंगे उसका end इन तीन symbol के अलावा किसी fourth symbol से नहीं होना चाहिए. Only these three symbols are allowed. So first of all, we will extract the we'll take input. Then we will extract the last character of that string, and that must be either dot, question mark or exclamation sign. Okay, it must be either dot, question mark or exclamation sign. Okay, now I'm going to show you the program. See, and since I'm going to use string tokenizer as well as scanner class, as you know, both belongs to util package. So instead of writing import java.util.scanner, here you will write util.star. Since here we are going to use two classes of this util package. Okay, then main function, you know, string. I'm taking input. After taking input, we have to extract the last character of that string. str.length -1, char at str.length -1. By this way, you will get the last character of that string. You'll store that into C. Got it? Now we'll check whether that C equal to dot or question mark or exclamation sign. If it is true, तीनों में से कोई भी सिंबल है लास्ट में, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू. मीन्स वी हैव एंटर्ड वैलिड इनपुट, वैलिड सेंटेंस. ये चीज कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज कॉमन रहेगी हर स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम में पढ़ोगे तो. देन now what I'm doing here, just I'm removing the last character. जो डॉट है ना, वो डॉट प्रॉब्लम करेगा. लास्ट का जो डॉट सिंबल है उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं. Why I'm removing, you know, afterwards see in the output. See in the output, वो डॉट नहीं है. हमने इनपुट दिया ना, as you so shall you reap. तो यहाँ पे देखो डॉट नहीं, जो आउटपुट में डॉट सिंबल है ही नहीं. So dot we have to remove. That's why I'm doing this. So you know, for that what I'm doing, str dot substring 0, इंडेक्स नंबर 0 से लेके सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक का पार्ट निकाल लेंगे. सबस्ट्रिंग फंक्शन का जो सेकेंड आर्गुमेंट होता है उसमें से -1 ऑलरेडी होता है, और -1 हम कर देंगे तो -2 मतलब सेकेंड लास्ट कैरेक्टर हमें मिल जाएगा. तो 0 से लेके सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक का पार्ट निकाल देगा ये सबस्ट्रिंग फंक्शन. मतलब वो जो लास्ट वाला डॉट है वो छूट जाएगा, बाकी पार्ट निकल जाएगा और str में ही स्टोर कर देंगे. तो str जो है अब बिना डॉट के हो जाएगा, लास्ट वाला सिंबल हट जाएगा. तो क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि आउटपुट में वो पार्ट नहीं आना है तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने हटा दिया और स्ट्रिंग को चेंज कर दिया. ठीक. देन string tokenizer class, if you remember, here I am creating the string tokenizer class. Why I am creating this string tokenizer class? Because we have to extract each word. ईच वर्ड हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा. अब देखो लॉजिक क्या है, हम जो लॉजिक बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं. तो पहले हमने वी हैव चेक्ड whether it is terminating with the dot, question mark or exclamation sign or not. Okay, now it is said arrange the words in ascending order of their length. If two or more words have the same length, then sort them alphabetically. Okay, so we are going to arrange the words of that sentence in ascending order of their length. Okay, so what we have to do, we have to store each word into an array at different index. ये लॉजिक हम मतलब एट द मोमेंट जो लॉजिक है मैंने प्रिपेयर किया है. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ईच वर्ड एंड यू हैव टू स्टोर दैट इनटू एन एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप. एक एक वर्ड निकाल के इस एरे के एक स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर करेंगे. उसकी साइज क्या होगी? जो सेंटेंस का नंबर ऑफ वर्ड्स होगा दैट विल बी द साइज ऑफ दैट एरे. तो उस वर्ड का स्ट्रिंग का उस सेंटेंस का एक एक वर्ड निकाल के उस एरे में स्टोर कर देंगे इंडेक्स वाइज. अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग वर्ड स्टोर हो जाए. ठीक. उसके बाद हम बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज करके उनकी लेंथ कंपेयर करेंगे. अगर प्रीवियस इंडेक्स का लेंथ नेक्स्ट इंडेक्स की लेंथ से बड़ा होगा तो उन दोनों वर्ड्स को हम इंटरचेंज कर देंगे. बबल सॉर्ट हमारे पास है, टेक्निक है. तो एरे में कन्वर्ट कर दिया, एक एक वर्ड उठा के हमने एरे में स्टोर कर दिया और अब वहाँ पे बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज कर लें. अगर प्रीवियस इंडेक्स का लेंथ नेक्स्ट इंडेक्स के लेंथ से बड़ा होगा तो हम दोनों की वैल्यू आपस में इंटरचेंज करेंगे, दोनों वर्ड्स इंडेक्स पे इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है, लेंथ वाइज कंपैरिजन कर लेंगे. यहाँ पे वैल्यू नहीं कंपेयर करेंगे, दोनों की हम लेंथ कंपेयर करें.
और अगर दोनों की लेंथ, प्रीवियस इंडेक्स का लेंथ और नेक्स्ट इंडेक्स के लेंथ के अगर इक्वल होगा तब हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तब हम कंपेयर टू फंक्शन का यूज करेंगे, जो अल्फाबेटिकली छोटा वर्ड होगा उसको हम पहले लाएंगे, ठीक है। तो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस लॉजिक आई हैव इम्प्लीमेंटेड हियर, okay, so that's why I have taken a string tokenizer, since we have to extract a word. So what I'm doing here, see, so if when we create the object of a string tokenizer class, here that's very important, the string from which we are going to extract the word, that string we write here. What string we have taken here str. तो जिस word string से word निकालना हो, extract करना हो, वो string हम यहाँ पे लिखते हैं, okay. Then this next count tokens function, ये स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास के दो फंक्शंस मैंने बताए थे, काउंट टोकन्स फंक्शन जो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करता है, और नेक्स्ट टोकन फंक्शन जो वर्ड एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वर्ड एक्सट्रैक्ट करने वाला यहाँ पे काम हो रहा है, इसीलिए हम स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज कर रहे हैं। तो आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास, हियर आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट आई एम स्टोरिंग इनटू द NW. दिस काउंट टोकन्स फंक्शन विल काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स. आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन बाय stz. That is the object of string tokenizer class. Okay, then here variables are required, ठीक है, आगे चलते हैं. Now here I have declared an array of string type of size NW. जितने number of words हैं we have counted in stored into NW. Now I am creating an array of string type of size as per the number of words, ठीक. और हियर आई एम, ये लूप देखो, इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड को निकाल के उसको AI में स्टोर करते जा रहे हैं. आई के लिए 0 से स्टार्ट किया और NW तक जाएंगे, जितने वर्ड्स होंगे लूप उतनी बार चलाएंगे, वही एरे की साइज भी है. तो 0 से स्टार्ट किया, तो वो stj डॉट नेक्स्ट टोकन, ये फंक्शन फर्स्ट टाइम फर्स्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा, सेंटेंस का पहला वर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा और वर्ड में स्टोर कर देगा. दिस फंक्शन इज हियर टू एक्सट्रैक्ट अ वर्ड. यहाँ पे कमेंट ले सकते हो, टू extracting the word. Here you can write extracting the, some comments like this कहीं कहीं लिख सकते हो, the word, extracting the word. ये वर्ड हमने निकाला, उस वर्ड को आई की वैल्यू 0 होगी फर्स्ट टाइम, तो उस वर्ड को हम A0 पे स्टोर कर देंगे. फिर ये लूप वापस जाएगा i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर से कंडीशन ट्रू होगी, जितने वर्ड्स होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, और एक एक वर्ड नेक्स्ट टाइम सेकंड वर्ड निकलेगा, वर्ड में स्टोर हो जाएगा, फिर वो वर्ड हम A1 में स्टोर कर दें, आई की वैल्यू 1 है तो A1 पे स्टोर हो जाएगा. लाइक दिस each word of the sentence will be stored to different index of array A. इंडेक्स नंबर 0 पे पहला वर्ड, इंडेक्स नंबर 1 पे दूसरा वर्ड, ऐसे स्टोर हो जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. अब वो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग लाइक दैट. आफ्टर दिस वी आर इम्प्लीमेंटिंग बबल सॉर्ट टेक्निक. अब बबल सॉर्ट टेक्निक किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो एरे ए है ना स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हमने एक एक वर्ड अभी स्टोर किया, ये पूरा लूप चला और एक एक वर्ड स्टोर हो गया अलग अलग इंडेक्स पे, ठीक है. अब ये लूप देखो, अगर बबल सॉर्ट याद है, दोनों लूप लेंथ -1 तक चलता है ना, i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, दोनों कहाँ तक चलता है, लेंथ -1 तक चलता है, ठीक. अब वहां पे बबल सॉर्ट में अगर याद हो तो हम लिखते हैं इफ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1. तो लेकिन हमें यहाँ पे aj और aj प्लस 1 की वैल्यू से नहीं मतलब है, aj और aj प्लस 1 के लेंथ से मतलब है. मतलब aj पे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है ना, स्ट्रिंग की लेंथ aj प्लस 1 पे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ से बड़ा है, तो उन दोनों की वैल्यू aj और aj प्लस 1 की वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे. बबल सॉर्ट का लॉजिक समझ में आ रही बात? यस सर. ठीक है. और एक क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, तो बताएं. यहाँ पे लिखा है कि इफ 2 और मोर वर्ड्स हैव द सेम लेंथ देन सॉर्ट देम अल्फाबेटिकली. अगर एक से ज्यादा वर्ड की लेंथ अगर सेम है, 2 और मोर वर्ड्स हैव द सेम लेंथ, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना, ठीक है. तो अब अगर वो ग्रेटर है तो इंटरचेंज कर देंगे, लेंथ बड़ा है छोटा है तो ठीक है. अगर इक्वल लेंथ का है उसके लिए फिर से हमने कंडीशन दे रखा है कि अगर aj डॉट लेंथ इज इक्वल टू aj प्लस 1 डॉट लेंथ, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू का लेंथ और नेक्स्ट इंडेक्स की लेंथ अगर इक्वल है, तो अल्फाबेटिकली बड़ा छोटा हमें चेक करना होगा ना. अगर लेंथ इक्वल है तो हमें क्या बड़ा छोटा चेक करना होगा, अल्फाबेटिकली कौन सा वर्ड बड़ा है ना. तो अल्फाबेटिकली कंपेयर करने के लिए कि 2 वर्ड्स आर, 2 स्ट्रिंग्स आर
ग्रेटर स्मॉलर, वी हैव कंपेयर टू फंक्शन, अगर याद हो। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, अगर कॉलिंग जो फर्स्ट स्ट्रिंग है सेकेंड स्ट्रिंग से बड़ी होगी तो पॉजिटिव, छोटी होगी तो नेगेटिव, और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो 0 रिटर्न करता है, याद है, अल्फाबेटिकली कंपेयर करता है। तो अगर एजे डॉट लेंथ और एजे प्लस 1 डॉट लेंथ अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों की स्ट्रिंग्स की लेंथ अगर इक्वल है, तब हमें कंपेयर करना है कि जो एजे है वो अल्फाबेटिकली एजे प्लस 1 से बड़ा है ना। तो जो बड़ा वो पहले नहीं होना चाहिए, छोटा पहले होना चाहिए ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जो छोटा वर्ड होगा अल्फाबेटिकली वो पहले होना चाहिए। तो अगर प्रीवियस इंडेक्स पे जो वर्ड है नेक्स्ट इंडेक्स के वर्ड से अगर बड़ा है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अगर ये स्ट्रिंग बड़ी है तो कंपेयर टू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब प्रीवियस इंडेक्स वाला वर्ड अल्फाबेटिकली बड़ा होगा नेक्स्ट 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 इंडेक्स वाले वर्ड से, मतलब एजे प्लस 1 वाले वर्ड से, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब अब हमें क्या करना है, उन दोनों को इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। तो वही फिर से वही यहाँ पे सेम टास्क, एजे और एजे प्लस 1 की वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर दे रहा है, समझ में आया। यही है, दो चीज है, अगर वो लेंथ अगर बड़ी है तो ठीक है, सीधे वैल्यू इंटरचेंज कर दिया, अगर लेंथ बड़ी नहीं है, इक्वल है, तो हम उनको अल्फाबेटिकली बड़ा छोटा कंपेयर कर रहे हैं, अल्फाबेटिकली बड़ा छोटा है तो उनकी वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा लूप चला, दोनों स्ट्रिंग सॉर्टिंग और वो दोनों चीज हो गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सब क्लोज हुआ, कहाँ पे सब क्लोज होगा, ये दोनों लूप यहाँ पे क्लोज होंगे, यहाँ पे। अब ध्यान दो, ये दोनों लूप क्लोज हो गए, यहाँ पे इफ क्लोज हुआ है, जो सबसे ऊपर वाला इफ था ना, जिसमें हमने वैलिड वाला कंडीशन चेक किया है, ये दिख रहा है, ये वाला इफ, विच इफ, यहाँ पे इनपुट लेके हमने चेक किया था, डॉट है, क्वेश्चन मार्क है, ये वाला इफ दिख रहा है ना, ये इफ यहाँ पे यहाँ क्लोज हुआ है, इस एल्स के पहले ये यहाँ पे क्लोज हुआ। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरा वर्ड अरेंज हो गया, जो एरे में हमने स्टोर किया था एरे ए, उसमें सब वर्ड्स किस ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो चुके, नहीं अल्फाबेटिकल नहीं, मतलब वही लेंथ के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लूप चलाना है और एक एक वर्ड को फिर से न्यू स्ट्रिंग में जोड़ना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन से मैंने ट्राई किया, लेकिन अब यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है स्ट्रिंग में, तो हमें यहाँ करना होगा, एक एक वर्ड निकालना होगा फिर से, और उसको क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, सॉरी, मतलब एरे का एक एक वर्ड जो है, जो एरे में स्टोर एक एक वर्ड इंडेक्स वाइज जाना पड़ेगा, और एक न्यू स्ट्रिंग हम बना के उसमें जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे str, सॉरी, स्ट्रिंग nstr हम ले लेते हैं न्यू स्ट्रिंग के लिए, nstr इक्वल टू, सिर्फ nstr हमने ले लिया, और उसको स्टार्टिंग में रखते हैं एम्प्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, न्यू स्ट्रिंग और दोनों स्ट्रिंग प्रिंट करना, ओरिजिनल स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग दोनों प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन हाउ मच, a डॉट लेंथ, देन I प्लस प्लस, देन यहाँ पे हम लिखेंगे nstr इक्वल टू nstr प्लस a I, ठीक है, फिर प्लस एक सिंगल स्पेस, वर्ड्स के बीच में स्पेस भी होना चाहिए, तो एक स्पेस। ऐसे क्या एक एक वर्ड, ये जो एक एक स्ट्रिंग है, जो एक एक वर्ड अलग अलग इंडेक्स पे, वो nstr में जुड़ता जाएगा, पूरा लूप चलेगा। यहाँ पे एंटर करें, ये लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो हमने न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, समझ में आ रही, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो लूप चला के हम एक एक इंडेक्स पे जो वर्ड है उसको nstr में जोड़ते जा रहे हैं विथ स्पेस। स्पेस क्यों दिया, कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेस मेंटेन रहे, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे system dot, as per the output you can see here it is written output original string, then what, new string. So here will display system dot out dot print ln, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, मैसेज नहीं प्रिंट करना, सिंपल प्रिंट कर देना है आउटपुट। तो str इज आवर ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट, एंड nstr will be our new string,
ठीक है, और एल्स में आया इनवैलिड इनपुट। ठीक, फिर लूप क्लोज, मेन क्लोज, क्लास क्लोज, फाइल सेव। नाउ विल गो फॉर द कंपाइलेशन। Compilation, I'm going to do the compilation here. Here, you know Java C, we write Java C a.java. Then we'll write Java class name. Class name I've taken as program, so I'm typing here. Enter string. उसमें देखो एग्जांपल है be kind to others. इसमें एग्जांपल दिया हुआ, see this, कहाँ गया, be kind to others. ठीक है, तो इसका आउटपुट हम दिखा रहे हैं तुम लोग को। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है be kind to others and be to kind others, ये आउटपुट है be to kind others। ये सैंपल इनपुट और आउटपुट से मैच कराएं, be to kind others। Are you getting the same output? Then one more, Yes. this input I'm giving as you sow, so shall you reap, डॉट के साथ। तो यहाँ पे फिर से इनपुट करें, here run the program again, and here what is that, what was that, as you sow, so shall you reap ना, as you sow, so shall you reap, एंड डॉट लगाना जरूरी है, फुल स्टॉप, नहीं तो इनवैलिड आउटपुट आएगा एज पर आवर क्वेश्चन। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग एज यू सो, सो शैल यू रीप, ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अच्छा, डॉट हट जा रहा है, एज यू सो यू रीप सेल, एज यू सो यू रीप सेल, ये तो गड़बड़ हो गया। यस सर। एक जगह हमने डॉट हटाया है, इसमें स्ट्रिंग में डॉट हटाया सब स्ट्रिंग का यूज करके, वो डॉट हटाने से पहले हम ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे दैट चेंजेस, अब रन कराने पे कुछ चेंज, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस अलाउड है। सो आई एम शोइंग यू, कहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग से निकाला था डॉट, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो डॉट भी आना चाहिए इसमें एज इट इज। ये जो हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग से निकाला है ना, इससे पहले ही हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे लिख देंगे, str यहाँ पे प्रिंट कर देंगे पहले ही। फिर से हम रन कराते हैं, ठीक है। कंपाइल, आफ्टर डूइंग एनी चेंज यू हैव टू कंपाइल इट अगेन, देन रन द प्रोग्राम। नीचे से तो हटाइए वरना 2 बार प्रिंट होगा ना। ओके, हाँ लास्ट माइनस हाँ किया हाँ, तो प्रिंट ओके करना हाँ, पहले। यस यस यस, वेरी गुड। वहाँ से हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा ना। गुड, सो माइंड इज वर्किंग, कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ ना, ठीक है, वेरी गुड। देन फिर से कंपाइल करें, compile it, now Java, same input I am giving again, as you sow, so you reap shall। सो ये लॉजिक था, सब इनपुट पे चेक किया है मैंने, सब पे सही आउटपुट आ रहा है, बस वो डॉट वाला प्रॉब्लम था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, ये इसका पीडीएफ हम बना के भेज दे रहे हैं तुम लोग, ठीक।